Hello young doctors, in this video we'll be talking about ideal and non-ideal solution. Now we have discussed Rawls law. Rawls law के accordingly अगर सोल्यूशन में वॉलेटाइल लिक्विड्स है यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो रही हैं तो जितना सोल्यूशन में इनका वेपर प्रेशर होगा दैट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में वो जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पार्शियल वेपर pressure. That means P1 is directly proportional to X1 and P2 is directly proportional to X2, where X1 and X2 is mole fraction in solution of component 1 and 2. Now जो solution Rawls law को फॉलो करें, ओबे करें ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वी कॉल दैट सोल्यूशन एज आइडियल सोल्यूशन. लेकिन जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वी कॉल दैट सोल्यूशन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन. Ideal solution obeys Rawls law, which is P1 is equal to P1 naught X1, where P1 is partial vapor pressure of one component, P naught 1 is pure component का vapor pressure, and X1 is mole fraction of first component over the entire range of concentration, no matter how much concentration we are taking of the first liquid. This is in liquid solution. Whereas in non-ideal solution, this solution does not obey Rawls law over entire range of concentration. So यहाँ पे जो vapor pressure होगा, this will be equal to the vapor pressure predicted by Rawls law. Whereas in non-ideal solution, vapor pressure can be greater or lesser than the vapor pressure which is predicted by Rawls law. So partial vapor pressure P1 is equal to the partial vapor pressure predicted by Rawls law. P1 is equal to P naught 1 X1. Whereas non-ideal solution में vapor pressure is either higher, which is in case of positive deviation, or lower, which is in case of negative deviation, then vapor pressure predicted by Rawls law. थर्ड इज इंथैलेपी ऑफ मिक्सिंग. जब हम इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो इंथैलेपी चेंज होगा वो जीरो होगा, यानी ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी. वेरएज नॉन आइडियल के केस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो. थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग. जब हम इनको मिक्स करते हैं तो जो वॉल्यूम चेंज होता है वो जीरो होता है. अगर हमने 2 लीटर मिक्स किया तो 4 लीटर ही बनेगा. 2 liter and 2 liter of solution will form 4 liter of solution. Whereas in non-ideal solution, volume may either increase or decrease. अगर हमने 2 लीटर मिक्स किया तो हो सकता है 5 लीटर बन जाए, इंक्रीज करे, या हो सकता है 2 लीटर बन जाए, डिक्रीज करे. So this is in case of non-ideal solution. So enthalpy change on mixing and volume change on mixing is zero in case of ideal solution, where it is not zero in case of non-ideal solution. Next अगर हम intermolecular attractive forces देखें, solute अगर हमने जैसे दो मिक्स मतलब solution मिक्स किए A और B, अब A और B में जो AA इंट्रैक्शंस थी और जो BB इंट्रैक्शंस थी, अगर इनकी वैल्यू जब इन दोनों को मिक्स किया तो AB इंट्रैक्शंस के बराबर आएंगी, देन सोल्यूशन इज आइडियल सोल्यूशन. वेराज जब सल्यूट की इंट्रैक्शन यानी AA और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन BB, ये जो है सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन के बराबर नहीं आएंगी, देन दैट सोल्यूशन विल बी नॉन आइडियल सोल्यूशन. Molecular attractive force between solute and solvent is equal to that between solute particles. So overall अगर हम बात करें, so AA interactions and BB interactions is always equal to AB interactions, solute and solvent की बीच की interactions. Whereas in case of non-ideal solution, AA interactions, solute interactions, and BB interactions, BB interactions, solvent interactions is not equal to, ये या तो बराबर होंगी या तो इससे ग्रेटर होंगी या तो इससे लेसर होंगी, is not equal to AB interactions, solute-solvent interactions. These both are not equal in case of non-ideal solution. There are some examples of ideal solution. Ideal solution के कुछ examples हैं. Non-ideal solution में तो 2 types आ जाती हैं, non-ideal solution with positive deviation and non-ideal solution with negative deviation from Rawls law. लेकिन ideal solution वो होते हैं जो हर concentration पे Rawls law को follow करेंगे. इसके कुछ examples है. First example is N-hexane and N-heptane. Straight chain molecule होगा तभी हमने N यूज़ किया है आगे. सेकेंड इसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन और क्लोरीन वाले कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन. ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेंगे. 2 कार्बन है, उसके साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ होगा. क्लोरीन लगा होता क्लोरोइथेन, ब्रोमीन लगा होता ब्रोमोइथेन.
नेक्स्ट इसमें आ गया ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन लगेगा बिकॉज ये भी स्ट्रेट चेन है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले हमने 2 के लिए पढ़ा था, अब 4 के लिए, प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड। सेम ही है, बस यहाँ पे 4 होंगे, पहले 2 थे ना इथेन के केस में, अब 4 हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रोमो इथेन था, यहाँ पे ब्रोमो ब्यूटेन है एंड क्लोरोब्यूटेन है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, या फिर ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन भी इसको कह सकते हैं। उसी में हमने ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन देखा, इसी के साथ बेंजीन एंड टॉलीन भी, बेंजीन एंड टॉलीन। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इन सबको मिक्स करेंगे, इंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा। जो इनमें इंट्रैक्शंस इस वक्त है इंडिविजुअली, वही इनको ऐड करने पर जो सोल्यूशन में होंगी, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस इज इक्वल टू सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। इनमें सबके शेप पता चल जाएंगे। बेंजीन टॉलीन, टॉलीन में जस्ट बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, और बेंजीन में तो जस्ट रिंग होती है हेक्सागोनल विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। सो ये बेंजीन और ये टॉलीन, और बाकी सबके स्ट्रक्चर तो ईजी है। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विल एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर वेपर प्रेशर जो होगा वो जितना प्रिडिक्ट किया उससे कम आएगा देन इट विल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है अगर वो कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन, अगर ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। टोटल निकालना आता है ना, P total इज इक्वल टू P1 + P2। सो यहाँ पे है इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो पॉजिटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा, और अगर लेसर देन 0 आएगी तो नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन विल एग्जिबिट। वॉल्यूम चेंज में भी ऐसे ही है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मिक्स करने के बाद तो पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन अगर मिक्स करने के बाद सोल्यूशन को वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल। तो अगर AA इंट्रैक्शंस जो प्योर सल्यूट की और प्योर सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस हैं, अगर वो ग्रेटर है सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से तो पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन अगर सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा है प्योर वाले से, यानी कि सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तब नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा। Non-ideal solution can exhibit negative deviation or positive deviation from Rolle's law. If it is negative deviation, यानी वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का आया है जितना हमने प्रेडिक्ट किया था P total is equal to P1 + P2, उसके बराबर नहीं आता है बल्कि उससे कम आता है। P total is lesser than that predicted by Rolle's law. Whereas in case of positive deviation, P total जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो ग्रेटर आता है as compared to what we have calculated by Rolle's law. एंथैल्पी चेंज या तो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो एंथैल्पी चेंज है वो कम होगी, दैट मीन्स डेल्टा H इज नेगेटिव, दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जब हमने सोल्यूशन को मिक्स किया तो एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। और वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो लेसर देन 0। हमने जितना वॉल्यूम मिक्स किया था 2 लीटर मिक्स किया था तो 3 लीटर ही बना, 4 लीटर नहीं बना, उससे कम बना। वेयर इज इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट मीन्स ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, एंड वॉल्यूम चेंज इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर हमने 2 लीटर मिक्स किया तो 5 लीटर सोल्यूशन का बन जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट ये जो होती हैं ये वीक होती हैं एज कम्पेयर टू दैट बिटवीन सल्यूट सॉल्वेंट। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो सल्यूट सॉल्वेंट में उनमें इंट्रैक्शन ज्यादा बन गई, वो ज्यादा उनमें अट्रैक्टिव फोर्स हो गई देन दैट एग्जिस्टिंग बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेयर इज इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो AA इंट्रैक्शंस और BB इंट्रैक्शंस थी वो ग्रेटर थी, और जब हमने उसको मिक्स किया तो जो फोर्सेस थी वो वीक हो गई इन केस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये ग्राफ बनता था रॉल्स लॉ के लिए। यहाँ पर हम y एक्सिस पे प्लॉट करते थे वेपर प्रेशर और x एक्सिस पे प्लॉट करते थे मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 का सिर्फ फर्स्ट वाला सल्यूट है, तो फर्स्ट वाले सल्यूट के लिए जो उसकी वजह से सोल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट, सो इट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड इट इज प्योर
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। इन दोनों का सोल्यूशन में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर पता चलता है सोल्यूशन का, जो इन दोनों की वैल्यूज के बीच में आएगा। सो ये वाला आता था रॉल्स लॉ से, लेकिन अगर हम इसको देखें नेगेटिव डेविएशन के केस में तो ये उतना नहीं आएगा, जबकि इससे कम आएगा, इससे वैल्यू जो है ये डिक्रीज करेगी। और सिमिलरली ये इसके लिए भी हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा P1 ये भी उतना नहीं आएगा, जबकि उससे कम आएगा। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है 2 सेकंड कंपोनेंट का वो भी कम आएगा देन दैट एक्सपेक्टेड बाय रॉल्स लॉ। और यहाँ पे टोटल कितना होता है, P total इज इक्वल टू हाउ मच, P1 प्लस P2, तो वो उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। P total इज लेसर देन P1 प्लस P2, उससे कम आई वैल्यू, नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था तो इससे ग्राफ ज्यादा बन रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो हो रही है। P total इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, और यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यूज है ग्रेटर आएंगी देन दैट एक्सपेक्टेड बाय रॉल्स लॉ। इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है पॉजिटिव डेविएशन में, एंड दैट इज इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में तो हमने देखा था ब्रोमीन और क्लोरीन वाले कंपाउंड्स थे। नाउ नेगेटिव डेविएशन में हम देखेंगे, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्योर वाले सल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं वो लेसर होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए देन दैट बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी उनको मिक्स करने पर उनके बीच में ज़्यादा अच्छी इंट्रैक्शंस हो रही हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें जब हम मिक्स करते हैं बेंजीन तो इनके बीच में इंट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर हो जाती। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म के बीच में इतनी अच्छी इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं और डाइथाइल ईथर में भी नहीं होती है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तब इनकी इंट्रैक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वील कंसिडर ऑफ वाटर। वाटर के साथ देखेंगे, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब हम इसमें HNO3 डाल देंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी, यानी अब और अच्छे से मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। नेक्स्ट आता है HCl एंड वाटर। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं CHCl3 वाले हो गए। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन का एक एग्जांपल है, एक एसीटोन का भी ले सकते हैं CH3CO CH3, दिस इज एसीटोन। प्रोपेन 2 इज एसीटोन, इसमें हम डाल देंगे एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 एंड दिस इज एसीटोन, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन में आएगा, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इसमें आता है एसिटिक एसिड CH3COOH और इथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, और इसमें डाल देंगे पिरिडीन। पिरिडीन होता है बेंजीन के बाद 6th वाली पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन हो तो वी कॉल दिस कंपाउंड एज पिरिडीन। तो यहाँ पे भी इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनमें इंट्रैक्शंस काफ़ी अच्छी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जब हमने उनको मिक्स किया तो उनकी जो इंट्रैक्शंस थी वो वीक हो गई, जो उनमें प्योर में थी वो ज़्यादा थी। सल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस वर ग्रेटर, लेकिन जब हमने उनको मिक्स किया तो सल्यूट इंट्रैक्शंस वर वीकर। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा इथेनॉल एंड मीथेनॉल। मिथेनॉल इज CH3OH एंड इथेनॉल इज C2H5OH। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ C2H5OH एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इथेनॉल C2H5OH विद एसीटोन। एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये भी आता है पॉजिटिव डेविएशन में। इनमें भी इंट्रैक्शंस वीक हो जाएंगी, इनमें इंडिविजुअल में ज़्यादा थी, तो जो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वो वीक हो गया जब हमने उसमें एसीटोन डाला, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना पहले था। नेक्स्ट इज द केस ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर हम डालें क्लोरोफॉर्म CHCl3। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें अगर हम डालें टॉलीन, टॉलीन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट इसमें और आ जाएगा एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो वीक हो जाती है जब हम इसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है एसीटोन CH3CO CH3, इसमें अगर हम डाल दें बेंजीन, बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। So these are all the examples of positive deviation.
टॉपिक इज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होते हैं जो बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बिकॉज इनकी कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड और वेपर फेज में, और इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी। विच इज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करें, इनको कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन पर लें तो दे ऑल्सो फॉर्म एजियोट्रॉप। और ये दो टाइप के एजियोट्रॉप बनाते हैं। फर्स्ट टाइप इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विच इज फाउंड बाय मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। This is formed by the solution showing negative deviation, which show negative deviation from Raoult's law. Negative deviation जैसे कि HNO3 and water। अगर हम HNO3 और वाटर का मिक्सचर लें, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जो कि इनके प्योर वालों से ज़्यादा होती है, AB इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर हम 68% HNO3 में 32% वाटर डालें तो दिस मेक्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सेकेंड होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम, इनका शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा और एक ही पर बॉयल करेंगे दोनों, HNO3 एंड वाटर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये जो बनाते हैं सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होगा दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल में जब हम वाटर डाल रहे थे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, तो दिस विल मेक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। हमने पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं जो इनके प्योर वाले में थे। जैसे कि अगर हम इथेनॉल और एसीटोन में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हमने एसीटोन डाल दिया तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वीकर होगी देन जितनी इथेनॉल में थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल दिया है, इथेनॉल और एसीटोन फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बेंजीन, टॉलीन, क्लोरोथेन, ब्रोमोइथेन, ये जो है ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये मतलब रॉल्ट्स लॉ ओबे करते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये नेगेटिव डेविएशन के, यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी देन दैट बिटवीन एसीटोन और दैट बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। आइडियल सोल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा H मिक्सिंग है, एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो होता है, और जो डेल्टा V मिक्सिंग है, वॉल्यूम चेंज जो होता है मिक्सिंग के टाइम, वो भी जीरो होता है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। हमने पढ़ा था कि दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और जिनका वेपर और सॉलिड फेज, वेपर और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होगा। तो इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पूछा है, नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। नेगेटिव डेविएशन का मतलब जिनको जब हम मिक्स करें तो उनके बीच में बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है। वाटर और नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन। जब डेविएशन पॉजिटिव होता है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ तो वहाँ पे रॉल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा। वहाँ पे जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी जितनी हमने रॉल्ट्स लॉ से निकाली। सेकेंडली वहाँ पे जो डेल्टा मिक्सिंग होगा H का वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और जो डेल्टा V मिक्सिंग होगा वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो जो AA इंट्रैक्शंस एंड जो BB इंट्रैक्शंस होंगी ये ग्रेटर होंगी देन AB इंट्रैक्शन। जब हम उनको मिक्स करें तब उनके बीच में इंट्रैक्शंस वीक हो रही हैं, लेकिन प्योर वाली की जो थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन AB। यस, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है वो भी ज़ीरो होता है और जो डेल्टा V मिक्सिंग होता है वो भी ज़ीरो होता है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड वाला देख लेते हैं, डेल्टा U। डेल्टा H और डेल्टा V को कौन सा रिलेशन रिलेट करता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। नाउ दिस वैल्यू इज ज़ीरो, दिस वैल्यू इज ऑल्सो ज़ीरो, तो डेल्टा U भी कितना आ जाएगा? ज़ीरो। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड C वाला दिया है जो डेल्टा P है, यानी जितना हमने ऑब्जर्व किया है माइनस दैट कैलकुलेटेड बाय रॉल्ट्स लॉ। जितना रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर उतना ही ऑब्जर्व्ड भी आता है आइडियल सोल्यूशन के केस में। सो दिस वैल्यू इज ज़ीरो। यस, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डी इज डेल्टा G।
डेल्टा जी को अगर हम डेल्टा एच के साथ लिंक करें इट इज़ कितना आता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन डेल्टा एच हमें पता है, तो वी कैन नॉट से दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Following statement about composition of vapor over an ideal molar mixture of benzene and toluene. इनका molar mixture दिया है 1:1. So number of moles of benzene is equal to 1. Number of moles of toluene is equal to 1. Mole fraction of benzene is equal to 1. Total number of moles 2. Mole fraction of toluene is 1. Total number of moles are 2. So assume the temperature is constant. Vapor pressure benzene का दिया है vapor pressure pure component का. Benzene का is given as 12.8 kilopascal and toluene का pure दिया है 3.85 kilopascal. Now we have to calculate vapor will contain कौन सा किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हम वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं. वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इंटू मोल फ्रैक्शन. प्योर का 12.8 दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया है 1/2. 2 6 है 12, 2 4 है 8. सो आंसर कम्स आउट टू बी 6.4 किलो पैस्कल. नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर निकालना है टॉलीन का. सो दिस विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट टॉलीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन. प्योर का दिया है 3.85 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन दिया है 1/2. 2 1 है 2 1 3, 2 9 है 18, 2 2 है 4, 2 5. 1.925 किलो पैस्कल. सो किसका प्रेशर ज़्यादा है, बेंजीन का. सो वेपर में बेंजीन का अमाउंट ज़्यादा होगा. ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल इक्वेशन. आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग बोथ आर 0 एंड ये रॉल्स लॉ को ओबे करते एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे हम डेल्टा यू भी निकाल सकते हैं. डेल्टा यू अगर डेल्टा एच को ऐसे करके लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो यहाँ से ये भी 0 है ये भी 0 है, तो डेल्टा यू भी कितना आ जाएगा 0. ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन डेल्टा एस कहाँ पे 0 है वी डोंट नो. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट 0 इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन. ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल. हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था. हमने इसको पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन में. होता क्या है कि ये जो है ना इथेनॉल CH3CH2OH इसके बीच में कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है, अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे सो दिस विल बी शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन जब हम इसमें डाल देते हैं एसीटोन, तो एसीटोन जो है वो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से जो AB इंट्रैक्शंस हैं ये वीक हो जाती हैं एज कम्पेयर टू AA एंड BB इंट्रैक्शन. सो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. Solution containing components A and B follows Rawls law. Rawls law को फॉलो करने वाले solutions are ideal solution. So ideal solution में क्या होता है कि जब हमने components को mix किया, जैसे कि solute के components से AA और solvent के components से BB, तो इनके बीच में जितनी भी interactions थी this will be equal to the interactions between solute and solvent after mixing. Before mixing जितनी interactions थी उतनी ही after mixing भी रहेंगी. So AB interactions is equal remain same. So option will be option C. और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डिफरेंट. नो, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा, यानी इंथैल्पी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. सो आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन. आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, व्हेन आइडियल सोल्यूशन obeys Rawls law at all the range of concentration and volume change on mixing and enthalpy change on mixing both is equal to 0. कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में भी और एंथैल्पी में भी. हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हैव नो एंथैल्पी चेंज, यस, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. हैव बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स. From ideal solution accept. Ideal solution is found when AA interactions and BB interactions is equal to the interactions between solute and solvent. AB interaction यानी मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जो इंट्रैक्शंस थी वो सेम रहनी चाहिए, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए और डेल्टा एच मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए. यहाँ पे ये वाले सब सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले भी सेम है, ये वाले क्लोरीन ब्रोमीन वाले तो 90% टाइम्स
आइडियल सोल्यूशन ही बनाते हैं। यहाँ पे जो ये वाले हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन जब हम उसमें आयोडीन वाला कंपाउंड डालेंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में ये इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से डी वाला जो होगा दिस विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। बट यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग को वीक कर रहा है, तो दिस विल शो positive deviation from Rolle's law. So option D will be the right answer.